Hello everyone. I, Dr. Namrata Kulkarni, Diet Faculty Daman, welcome you all in online educational lecture series. This series have organized by Diet Daman under Samagra Shiksha. We are guided by the vision and mission of our respected Secretary of Education, Ms. Pooja Jain ma'am, Director of Education, Mr. Nilesh Gurov sir, Assistant Director Paritosh Shukla sir. Today, we have a very special guest with us, Dr. Neha Belsare ma'am. Yes. Ma'am is working as senior lecturer in SCRT Pune. She has also an additional charge as Deputy Director SCRT and Director MIPA, that is CMAT Maharashtra. She has 27 years experience in teaching faculty. She has worked as an expert in various state level education committees. Her research articles published in journals of NIPA. She has presented research paper in 3 international conference, 6 national conference and 12 state level conference. She was awarded as COVID-19 warrior female officer in the field of education by Nakshatra Foundation Pune. It is an honor to have you ma'am here. Welcome ma'am. The topic of today's session is NEP and Indian ethos, ECCE to HSC. I am requesting you ma'am, please guide us by your valuable words. Thank you. Yeah. Thank you, Namrata, for your kind words. At the outset, I would like to thank all your senior officers from Union Territory, Dadra Nagar Haveli and Daman, uh, especially Honorable Education Secretary Pooja Jain ma'am, Honorable Director Education Nilesh Gurov sir, Honorable Assistant Director Paritosh Shukla sir, and Diet Head Dr. Bhavesh Kumar sir, Dr. Namrata and all diet faculties and HM's principals who have joined this online session. Now we will start to interact with this topic, new education policy, National Education Policy 2020 and Indian ethos. But more the emphasis of earlier policies on expansion of education like access and all that, reaching infrastructure to each and every corner of the country. But the pillar of this policy is very important out of 5 pillars, that is quality. Develops a deep sense of respect towards fundamental rights, duties, and constitutional values. We know that justice, liberty, equality are our constitutional values, and we are the most biggest democratic country in the world. And bonding with one's country and a conscious awareness of one's role and responsibilities in changing world is very important because कोई भी अगर पॉलिसी आती है तो वो ये देखती है कि प्रेजेंट इश्यूज क्या है. एजुकेशन इज अ सोशल साइंस एंड वो सोशल साइंस होने की वजह से जो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इश्यूज है और एजुकेशन में जितने इश्यूज है वो एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये विजन इस पॉलिसी का है. तो इसमें आपको ये दिखेगा कि फ्यूचरिस्टिक व्यू देखा गया है कि 20 साल के बाद हमारा हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम सबसे बढ़िया होगी ग्लोबल लेवल पे, और इसके आगे कोई भी कंट्री की एजुकेशन सिस्टम नहीं होगी. ये विजन रख के ये 20 सालों में हमें कैसे आगे जाना है और 20 सालों के बाद हमारा देश कैसे होगा, ये आज इस कमेटी ने पूरे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो इसके चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने उनके 9 मेंबर्स की जो टीम है इन्होंने सोच के ये फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी बनाई हुई है.
और इसमें हम लोगों को ये दिखाया गया है कि जो वैल्यू क्राइसिस हम लोग समाज में देख रहे हैं कि मूल्यों का ह्रास हो रहा है, यानी जो बिहेवियर हम लोगों को जैसे लोगों का एक्सपेक्टेड है वो ना देखते हुए और हमारा जो वैल्यू सिस्टम है इंडिया की बेसिकली वहाँ से हम लोग कई दूर जा चुके हैं। वहां तक हमें फिर से लेके आना है, हमारे वैल्यूज हर एक बच्चे में इनकलकेट हो और हमारी अवधारणाएं ऐसी हो कि हम रूटेडनेस जो है वो इंडिया में रहे और उसके बावजूद हम लोगों को ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनना है। तो ये जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है जिसके लिए इंडिया कमिटेड है। इन 2015 यूनाइटेड नेशंस को हम लोगों ने इंडिया ने भी कमिटमेंट दिया हुआ है कि हम लोग 2030 तक इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी हमारी कंट्री होगी और वी विल एबल टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया। तो ये विजन जो है पॉलिसी का that is rooted in Indian ethos and to instill a deep-rooted pride of being Indian। तो एक भारतीय होने का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये हमें समझनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हम जो बोल रहे हैं कि इस पॉलिसी के तहत कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन से यानी एज ग्रुप ऑफ 3 से बच्चे स्कूल में आएंगे और जभी से हम लोग जो सिस्टम के लोग हैं वो और जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो पेरेंट्स हो समाज हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो, तो ये इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए एजुकेशन में बदलाव लेके आ रहे हैं और राष्ट्र निर्माण करना, आत्मनिर्भर होना, इंडियन होना, भारतीय होना, ये इसका अर्थ हम लोगों को अलग अलग मायने में समझना होगा। और ये इंडियन रूटेडनेस या इंडियन वैल्यू सिस्टम क्या है, इंडियन इथोस क्या है, ये समझ के हमारा जो इंडियन बेस है वो बचपन से ही बच्चों में कैसे इनकलकेट किया जाए। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तो हमारे बर्तन से, उनके इंटरेक्शन से वो कैसे कैसे करना है, ये सब ये पॉलिसी में अलग अलग लेवल पे सोचा गया है और विथ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो हम लोग अभी समाज में देखते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, इस पे बहुत ज्यादा सजगता है, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारे ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हम एक बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन है, तो हम कैसे हमारा बिहेवियर होना चाहिए, दैट शुड बी अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो ये हमें देखना है। ये पॉलिसी में हर एक चैप्टर में आपको ये दिखने को मिलेगा कि to abide by these values, how to transact curriculum और जो भी रिफॉर्म करना है वो कैसे करना है, पेडागोजी में ये कैसे लेके आना है, ये सब पॉलिसी में बड़ी फोकस रख के दिया गया है। और इसमें कैसा है, हम लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाले टीचर्स नहीं बनाने हैं, तो लाइफ लॉन्ग लर्नर और इंडिपेंडेंट थिंकर होना चाहिए बच्चा। तो उसके लिए वो एक गुड ह्यूमन बीइंग बने, उसके ह्यूमन राइट्स क्या है वो तो देखे जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ग्लोबल सिटीजन बनते हुए अपनी कंट्री की तरफ क्या है, उसमें एक पैट्रियोटिज्म कैसे आना चाहिए। और हमारे जो इंडियन वैल्यूज है जिसमें सेवा है, अहिंसा है, स्वच्छता है, सत्य है, निष्काम कर्म है, ये सब कैसे लेके आना है
तो इसके लिए ये कमिटमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि हमारी विजन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इक्विटेबल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और ये सब करते हुए हमें ग्लोबल वेलबींग के लिए भी काम करना है और रिफ्लेक्टिंग अ ट्रूली ग्लोबल सिटीजन with rootedness in Indian ethos of each and every citizen of India. The rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thought has been guiding light for this policy. तो हम लोग एक तरफ बात ये पॉलिसी में ये कर रहे हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है, भविष्यवेदी है, यानी ग्लोबल सिटीजन जो बनना चाहिए एजुकेशन से हमारे बच्चे, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, वो जाना है। फिर भी हमारा जो जो एंशियंट नॉलेज है वो उसमें क्या अच्छा था, क्या अच्छा है जो हम आगे लेके जा सकते हैं। पूरा ही डिस्कार्ड कर देने वाली बात नहीं थी और पूरे ही लेके जाने वाली बात भी नहीं है। तो हम लोगों को ये रैशनली थिंक करना होगा कि हमारा हेरिटेज क्या है, एंशियंट कौन सी ऐसे नॉलेज की चीजें ऐसी है कि जो आज भी रिलेवेंट है। और हम लोग ये जब सोचते हैं तो हमारे रिच लिगेसीज के बारे में हम जितना डीपली स्टडी करते हैं तो हम लोगों को ताज्जुब होता है कि इतना सारा नॉलेज हमारे कंट्री में, हमारे देश में, हमारे पुरखों ने उस टाइम में करके रखा है, लेकिन उसकी जितनी स्टडी होनी चाहिए थी इंडियन लोगों ने करनी चाहिए थी, उससे ज्यादा उसकी स्टडी जो है वो बाहर के लोगों ने की है, आउट ऑफ इंडिया के। और वेस्टर्न कंट्रीज के जिन लोगों ने इसकी स्टडी ज्यादा कर ली है उन्होंने उनके आईने से वो देखा हुआ है, ये भी बात सही है। तो अभी नीड क्या है कि हमारी एंशियंट नॉलेज कौन सी एडवांस थी जो आज भी रिलेवेंट है। ये अलग अलग किस्से हम लोग सुनेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। अगर हम लोग मैथ्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो आर्यभट्ट ने जो ये किया है, मैथ्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जीरो का जो इन्वेंशन है, या फिर उस टाइम पे लीलावती और भट्टाचार्य जो आर्यभट्ट के इसमें जो संवाद हुआ है उसमें ये समझ में आता है कि टाइम जोन के बारे में उस टाइम पे इतनी स्टडी हुई थी कि 1 सेकंड का 600वां पार्ट वो काउंट कर पाते थे, और उसकी वजह से उतना भी अगर मुहूर्त में ये गैप आ गया तो उनका विवाह उन्होंने नहीं किया था। तो अलग अलग हम लोगों को दिखाई देता है कि आर्किटेक्चरल अगर पुराने ऐतिहासिक हम लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे जंतर मंतर आपने देखा होगा दिल्ली का, तो कितना ये खगोलीय ज्ञान जो था वो आज भी हम लोग स्टडी करने के लिए जहाँ वहां पे जाने के बाद समझ लेने में भी दिक्कत होती है, वो वहां पे इतना आगे था। तो बहुत सारी चीजें हमारे कंट्री में इंडिजिनस नॉलेज में ऐसी है जो बहुत ही एडवांस है, जो आज भी रिलेवेंट है। तो ये हमें उसका बचपन से यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन से अलग अलग 64 जो कला है, आर्ट है, हमारे इंडियन आर्ट, वो क्या है, 14 अलग अलग विद्याज जिसको बोलते हैं वो क्या है, वो उसमें हम लोग जितने डीपली जाएंगे तो हम लोगों को एक प्राउड फील होगा एज एन इंडियन कि इतनी सारी चीजें उस जमाने में इतने एडवांस लेवल तक इन लोगों ने सोच के रखी थी, जो बीच में मैकेले की एजुकेशन सिस्टम आने के बाद वो उसमें पीछे छूट गई है। तो वो फिर से लेके आने के मौके ये पॉलिसी हम लोगों को क्रिएट कर देती है। दिस पॉलिसी इज बेस्ड ऑन 5 pillars
एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें इक्विटेबल वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बनाना है। इंडिया एक नॉलेज सुपर पावर होना चाहिए, होगा, ये विश्व गुरु होगा, ये पॉलिसी का विजन है। तो इसके लिए ये 5 पिलर्स है। एक्सेस के बारे में हम लोग सोचते हैं कि अर्लियर 2 पॉलिसीज के में आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी सारा काम हुआ और एवरी लुक एंड कॉर्नर तक हम लोग स्कूल ले जाने के लिए काफी सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग plethora of initiatives has been taken by central and state governments and also in union territories. बट आज भी ये रियलिटी है कि मोर देन 3 करोड़ बच्चे आज भी आउट ऑफ स्कूल है। तो हमें अगर इक्विटी लेके आनी है तो ये सब चीजों पे हमें काम करना होगा। सबको एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009 इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद भी आज भी बच्चे अगर आउट ऑफ स्कूल है तो एक्सेस के बारे में फिर से सोचने की बात है। तो अकाउंटेबिलिटी की जो बात है वो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी एंड हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। हम लोग अलग अलग जगह पे ऐसे एक सिस्टम बोल के काम करते हुए जितना वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी है, यानी हमारे सीनियर जितने बोले जाते हैं उनका हम लोग अच्छे से वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी डील करने में माहिर रहते हैं सिस्टम के लोग। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी है हमारे पीयर्स के साथ, हमारे ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ और स्पेशली बच्चों के साथ, कि वो उत्तरदायित्व हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इक्विटेबल सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो ये सबका आदर रखते हुए, सबके साथ इंटरैक्ट करते हुए हम एजुकेशन में क्वालिटी कैसे लेके आए और वो एजुकेशन हर एक बच्चे को अफोर्डेबल कैसा हो, ये देखने से ही हम लोग इक्विटी और क्वालिटी ये पिलर्स एड्रेस कर पाएंगे। तो ये 5 पिलर्स है पॉलिसी के, जिसपे फाउंडेशन पे, नींव पे ये खड़ी हुई है। तो अभी ये बदलाव क्या आए हुए हैं इसमें, हाउ चिल्ड्रन विल लर्न। अभी भी बच्चे स्कूलों में सीख रहे हैं 10+2+3 का पैटर्न आफ्टर फर्स्ट पॉलिसी 1968 से चलता आ रहा है अपने देश में। तो इसमें ये पॉलिसी ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ये बदलाव लेके आई है 5+3+3+4। और इसमें फाउंडेशनल स्टेज जो है ये 5 इयर्स की है, एज ऑफ 3 से लेके 8 साल की उम्र तक के बच्चे फाउंडेशन स्टेज में पढ़ेंगे। तो ये क्यों किया है, इसका रैशनल क्या है, ऐसा क्यों स्ट्रक्चर बदला हुआ है, इसके बारे में हम लोग जब सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि फाउंडेशन स्टेज जो है ये 3 to 8 इयर्स के एज के बच्चों के लिए है, जिसमें 3 ईयर से 6 ईयर तक अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन होगा और स्टैंडर्ड 1 and 2 भी इसको फाउंडेशन स्टेज को अटैच किए जाएंगे। और अभी रिसेंटली मैंने एक एनसीईआरटी फैकल्टी का एक वेबिनार अटेंड किया, तो उसमें ये समझ में आया है कि वो लोग नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी में ऐसे सोच रहे हैं कि फाउंडेशन स्टेज में स्टैंड अगर हम लोग ये एज ग्रुप 9 तक करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो एक पहला पड़ाव है, जो एक पहला स्टेप है, स्टेज है, वो हम लोग एट द स्टैंडर्ड 3 में सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड 3 के जो बच्चे हैं वो 100% बच्चों में फाउंडेशनल न्यूमरेसी और लिटरेसी अचीव होनी चाहिए 2025 तक। ये पॉलिसी का विजन है, कमिटमेंट है, फोकस है और उसके लिए जो चाहिए वो करना मिशन मोड में करने का भी प्रयास प्रावधान इसमें रखा गया है। और दूसरी बात इसमें यह है कि ब्रेन का जो रिसर्च हुआ है आफ्टर 60s, फोटो कॉपिंग का जो टेक्निक, जिस फोटो इमेजिंग का टेक्निक
जब से उभर के आया है, उसके बाद ब्रेन बेस्ड लर्निंग में काफी सारे रिसर्चेस ग्लोबली हुए हैं और वो ये बताते हैं कि एज ग्रुप 2 से 8 तक ब्रेन डेवलपमेंट मोर देन 85% हो जाते हैं बच्चों का, और इसमें ये बहुत स्पीडीली होता है। तो इसकी वजह से एट द एज ऑफ 3 बच्चों को स्कूल में लाया जाए, लेकिन उनको ये इनफॉर्मल एजुकेशन 3 to 6 में होना चाहिए। उसमें टीचिंग लर्निंग एक्चुअल इस तरीके से होगा कि बच्चे फर्स्ट में जाने के लिए उनका प्रिपरेशन होगा। तो इसमें एक्चुअल लिखना पढ़ना फॉर्मली ये एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उसकी पूर्व तैयारी प्रिपेयर्डनेस जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली ये फाउंडेशन स्टेज है। और अगर हम लोग 6+ को बच्चे फर्स्ट में जाएंगे ये सोच रहे हैं, तो 5+ को बच्चों को बाल वाटिका में 100% बच्चों को उनका स्कूल रेडीनेस होना चाहिए, ये भी ये पॉलिसी फोकस करती है। तो क्यों ये स्टेजेस बनाए गए हैं? तो इसका बेस साइकोलॉजिकल भी है और ब्रेन बेस्ड लर्निंग का भी है, ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो स्टेज है ये प्रिपरेटरी स्टेज है, वो 3 इयर्स का है और इसमें पॉलिसी में जो बताया गया है 3, 4 और 5 स्टैंडर्ड, 3rd से 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं ये प्रिपरेटरी स्टेज में आएंगे। इसमें प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग पे फोकस रहेगा। और मिडिल स्टेज जो है वो 6 to 8 ये स्टैंडर्ड के लिए है। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 7, 8 ये 3 इयर्स के बच्चे ये मिडिल स्टेज में पढ़े, मिडिल स्टेज कहा गया है इसको। और इस पे भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग और साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई होगी। और स्पेशली स्टैंडर्ड 6 से बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज के लिए एक्सपोजर दिया जाएगा और उनके लिए 10 एवरी ईयर 10 बैगलेस डेज होंगे। और जो लोकल वोकेशंस है, लोकल व्यवसायिक जो है, उनके साथ जुड़ने के मौके बच्चों को मिलेंगे। हम लोग अभी देखते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन इंडिया में सिर्फ 5% बच्चों को मिलता है। और जो हम लोग अगर जो विकसित राष्ट्र है उनका अगर देखते हैं तो उसमें साउथ कोरिया में 95% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन मिलता है। तो ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा है और ये हमें ब्रिज करना है कि वोकेशनल एजुकेशन 2030 तक 50% बच्चों को मिलना चाहिए। इस तरीके से स्टैंडर्ड 6 से अलग अलग वोकेशंस को इनको एक्सपोजर दिया जाने वाला है। सेकेंडरी स्टेज जो है वो है 9 से 12 तक, 9, 10, 11 एंड 12। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ऐसे जो स्ट्रीम्स है 10th के बाद, वैसे अलग अलग स्ट्रीम्स नहीं होंगे। तो बच्चे उनकी चॉइस के मुताबिक, उनकी जिसमें रुचि है उसके अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट्स चुनेंगे। और इस 4 साल का जो सेकेंडरी स्टेज है 9 से 12 तक, HSC तक का जो है, उसमें अगर हम लोग सेमिस्टर का प्रावधान रखते हैं तो उसमें हर एक सेमिस्टर को मोर देन 3 सब्जेक्ट्स अगर बच्चे सीख पाते हैं तो नियर अबाउट 40 अलग अलग सब्जेक्ट ये 4 इयर्स में वो सीख पाएंगे। और 40 यानी 40 अलग अलग कोर्सेज सब्जेक्ट्स सीखने की वजह से उनको जिसमें करियर करना है तो उनकी तैयारी हो जाएगी और वो खुद सिलेक्ट कर पाएंगे मुझे किस फील्ड में जाना है, ना कि मेरे साथी किस फील्ड में गए हैं या मेरे माता पिता मुझे कह रहे हैं कि आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो। तो अलग अलग ये जो व्यावसायिक शिक्षा उनको मिलने वाली है स्टैंडर्ड 6 से लेके, और ये एक्सपोजर जो अलग अलग 40 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को उनके चॉइस के अकॉर्डिंगली मिलने वाला है, उससे बच्चे खुद का करियर किस फील्ड में बनाना है इसके लिए खुद डिसीजन लेने के लिए तैयार होंगे। और इसका एक और भी एक विशेषता ये रहेगी सेकेंडरी स्टेज की कि मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ऐसे स्ट्रीम्स नहीं होंगे। और फिर करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर
ऐसे कुछ नहीं रहेगा कि हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, क्राफ्ट हो, एवरी सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। किसी बच्चे को अगर म्यूजिक लेना है, उसके साथ साथ उसको अगर अकाउंट्स सीखना है, उसके साथ साथ उसको फिजिक्स सीखना है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स 10th के बाद भी ले सकता है। इसकी वजह से बच्चे अपनी रुचि के अनुसार सीखेंगे तो उस पे प्रोफिशिएंसी वो ज्यादा ले पाएंगे, और उनमें जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको भी अलग से एक्सपोजर मिलेगा, ताकि वो ज्यादा एक्सेल कर सके। अभी यूनिवर्सल एक्सेस ईसीसीई के लिए जो हमें काम करना है वो भी मिशन मोड में काम करना है, क्योंकि 3 to 6 के बच्चों के लिए हमने अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का प्रावधान इसमें किया गया है। और एनईपी का जो ड्राफ्ट आया था मई 2019 में, उसमें ये स्पेशली कहा गया था कि ये आरटीए के अंदर आना ही चाहिए, लेकिन अभी फाइनल ड्राफ्ट जो आया है उसमें प्रावधान रखा गया, आया है तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन जो स्टेट्स ये कर पाएंगे तो वो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ये इसमें लगता है। और अभी भी जो इसके अर्लियर पॉलिसी में जैसे चल रहा था ईसीसीए अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज, वैसे ही रखा गया है। इसमें सिर्फ कॉन्वर्जेंस करने के लिए स्टेट्स एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाना चाहिए, ये इसमें प्रावधान रखा गया है। ईसीसी का फ्रेमवर्क जो है वो एनसीईआरटी बनाएगी, और ये हमें देखना है अभी इसमें कि मल्टी फेसेटेड फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसमें कॉम्प्राइजिंग ऑफ अल्फाबेट्स, लैंग्वेजेस, नंबर्स, ये जो है, तो ये सब में इसी थिंकिंग करना आना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग उनको करना आना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट थिंकर होना चाहिए। उसके लिए उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज एनसीईआरटी को कहा गया है। इसमें ईसीसी का जो फ्रेमवर्क है 3 to 6 इयर्स के लिए अलग से बनेगा और 0 to 3 इयर्स के लिए बनेगा। यानी बच्चों का अर्ली केयर कैसी लेनी है, इसके बारे में भी 0 to 3 इयर्स के लिए अलग से फ्रेमवर्क बनने वाला है। क्योंकि जो मूलतः जिसको हम लोग बोलते हैं कि फंडामेंटल बदलाव जो लेके आने हैं, तो बच्चे हेल्दी, उनका बर्थ के समय से ही वो हेल्दी हो, तो उनका हम लोग एजुकेशन से उनकी माइंड, बॉडी और हेल्थ ये सब अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली इसका ध्यान रखा गया है, ये हमको समझ में आएगा। फिर अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन में लर्निंग इन फॉर्मेटिव इयर्स, इसमें जो अलग अलग पेडागोजीज दिए गए हैं ये इस स्लाइड में दिखाई दिए हैं, और ये सब करते हुए एथिक्स भी देखेंगे आप, तो इसमें एथिक्स भी दिए गए हैं। फिर आर्ट्स, क्राफ्ट्स और म्यूजिक कि ऐसे नहीं है कि इतने छोटे बच्चे हैं तो इनको क्या सिखाना है, ऐसे नहीं है। तो इनफॉर्मली इन बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस का एक्सपोजर मिलना चाहिए। उनको बच्चों का एजुकेशन जो है वो मदर टंग में ही होना चाहिए, स्पेशली स्टैंडर्ड 5th तक तो कंपलसरी होगा तो अच्छा ही है, और 8th तक होगा तो उससे अच्छा है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस का एक्सपोजर, जिसको हम लोग बहुभाषिकता या मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं, वो इस ईयर से ही होना चाहिए कि 2 से 8 साल की उम्र में बच्चे लैंग्वेजेस अच्छा कैप्चर कर लेते हैं। इसमें अगर हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस उनको सुनाते हैं, वो बच्चे सुनते हैं, उनके कान पे आते हैं, तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो देखने के लिए क्या देना है, सुनने के लिए क्या देना है, बातें कौन सी होगी उनके सामने, ये सब अर्ली लर्निंग में डिटेल में दिया गया है। और ये पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसमें तो काफी डिटेलिंग, इसमें एक्चुअली कैसे प्ले वे मेथड से करना है इसके काफी एग्जांपल्स भी दिए हुए थे। तो जो लोग ईसीसी में काम कर रहे हैं उन्होंने वो ड्राफ्ट जो है 486 पेजेस का वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो रिलेशनशिप विथ नेचर,
हम लोग जो बोलते हैं कि पंच महाभूत जो हमारी संस्कृति है कि उनका हमने आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप विद नेचर है वो अर्ली चाइल्ड केयर से ही इस स्टेज से ही हमको बनाते बनाते आगे लेके जाना है बच्चों को। और इस एज से ही बच्चे बच्चे क्यूरियस रहते हैं, हम लोगों को पता है। तो वो क्यूरियोसिटी एनहांस करने के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे देना है, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग कैसे करना है, और उसके लिए जो इंडियन आर्ट है, अलग अलग क्राफ्ट है, म्यूजिक है, पपेट शोज है, गेम्स है, ये सब यूज करते हुए उनके माध्यम से वो पेडागोजी यूज करते हुए हमें आगे लेके जाना है। Then attainment of foundational literacy and numeracy by grade 3 in mission mode. मैंने कहा आपको कि 2025 तक ही 100% बच्चों में हमें ये लेके आना है मिशन मोड में, ये पॉलिसी कहती है। और आज का सिनेरियो हम लोग नेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर देखते हैं नेशन लेवल पे, तो हम लोगों को ये दिखता है कि स्टैंडर्ड 3 के हर 3 बच्चों में से 2 बच्चों को रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है। और हर 3 बच्चों में से इन बच्चों को ये मैथ्स के जो बेसिक स्किल्स है, यानी नंबर का ज्ञान होना और बेसिक जिसको हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, वो नहीं आते हैं। और ये अगर हमें बदलना है कि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं लेकिन अध्ययन आपत्ति है, लर्निंग क्राइसिस है, तो हमें ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी इंश्योर करनी है। और इसके लिए फाउंडेशन स्टेज पे हमें उनका स्कूल प्रिपेयर्डनेस जो है बिफोर एंटरिंग इनटू क्लास 1, उसके लिए काम करना है। और उसके लिए ये जो है GR of ECC should be 100% before 25, ये भी हमें देखना है। तो ही हम लोग ये आगे की सभी चीजें कर पाए। अभी करिकुलम में लेके आना है तो कोर एसेंशियल सिर्फ रखने हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का उनको मौके देने हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के मौके देने हैं, और उसके साथ साथ बच्चे खुद से सीखे, इसके लिए टीचर का रोल फैसिलिटेटर का हो, इसके अकॉर्डिंगली करिकुलम में बदलाव लेके आने हैं। और हम लोग जो बोल रहे हैं कि इंडिजिनस नॉलेज आना चाहिए बच्चों को, और उसके बारे में उनका अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, और वो लेके वो आगे ग्लोबल सिटीजन होगा। क्योंकि ऐसे कहा गया है कि फर्स्ट मिलेनियम इज रूल्ड बाय मसल पावर, second by money power, and this third millennium will be ruled by knowledge power। और अगर इंडिया ये सुपर पावर होगा, सुपर नॉलेज पावर होना हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को करिकुलम में हर एक सब्जेक्ट में जो कंटेंट है वो कम करके कोर एसेंशियल्स क्या है वो रख रहे हैं, और बच्चों ने खुद से सीखने की, सेल्फ लर्निंग की आदत उनमें डालनी है। और वो अगर मातृभाषा में सीखेंगे तो उनका बेस अच्छा होगा, और अलग अलग डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस भी वो सीख पाएंगे और इंडियन लैंग्वेजेस भी सीख पाएंगे अगर उनकी मातृभाषा पे अच्छी पकड़ होगी। और अगर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी वो एट द एज ऑफ 9 100% बच्चे अचीव कर पाएंगे, तो आगे का पूरा एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक का वो अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे स्किल्स, कैपेसिटी डेवलप करते हुए कर पाएंगे, ये अच्छा ग्लोबल सिटीजन वो बन पाएंगे। तो इसलिए हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करिकुलम में लेके आने हैं। करिकुलम में हम लोगों को ये सोचना है कि अलग अलग ये इंडिया जो है ये डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो डाइवर्सिटी कैसे सेलिब्रेट करना है। करिकुलम में हमें ये देखना है कि लोकल स्पेसिफिक वोकेशंस, लोकल स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, लोकल स्पेसिफिक कल्चर, उनके जो डायलेक्ट है उसको हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते समय, कोलैबोरेटिव लर्निंग करते समय ये इंडिजिनस नॉलेज, 64 आर्ट फॉर्म्स, 14 विद्यास, इन सब का कॉन्वर्जेंस करते हुए बच्चे आगे कैसे मूव करें, ये सब के लिए हमें
एनसीएफ बदलना है, जिसपे एनसीईआरटी काम कर रही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और उसके अकॉर्डिंगली स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क होगा और उसके अकॉर्डिंगली रिफॉर्मेशन इन करिकुलम होंगे। फिर हमें फोकस करना है लर्निंग आउटकम्स पे, बच्चों में कौन सी कॉम्पिटेंसेस डेवलप करनी है, वो कैसी होगी। सिर्फ शब्दों का प्रयोग करके, शब्दों का आदान प्रदान करके ये नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देना होगा। अलग अलग एक्सपीरियंसेस, पावरफुल एक्सपीरियंसेस एज अ टीचर हम लोगों को क्रिएट करने होंगे। कुछ स्कूल में करने होंगे, कुछ स्कूल के बाहर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों में कहीं जाके बच्चों को सीखना होगा। ऐसे मौके उनको देने होंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, उसके लिए अलग अलग मौके बच्चों को देने होंगे। प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअल टीचिंग लर्निंग, उसके लिए क्या करना है, बच्चों के खुद के जो लैंग्वेज है उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके, उनके लैंग्वेज के, उनके भाषा में, उनके जो त्योहार है, उत्सव है, या फिर उनकी जो लोक कला है, ये सब समझ के उनको इनकॉर्पोरेट करके हमें आगे जाना है। और ये सब करते हुए डिजिटल लिटरेसी भी बनानी है। और अलग अलग सब्जेक्ट में, ये करिकुलर है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, को करिकुलर है, ऐसे ना करते हुए, एकेडमिक और वोकेशनल ऐसा अलग अलग डिफरेंस ना करते हुए, हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। और वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में ईसीसी के स्टेज से आगे लेके जाना है हमें। सपोज ईसीसी के अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, बाल शिक्षा के बच्चों को हमें अलग अलग शेप्स का ज्ञान देना है कि किसको सर्कल बोलते हैं या किसको स्क्वायर बोलते हैं। तो वो ज्ञान देते हुए उसमें हम लोग अलग अलग कलर्स फील करेंगे, उसके साथ एक गेम बनाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी कि फ्लोर पे ऐसे अलग अलग शेप्स बनाए हुए हैं, हर एक शेप को डिफरेंट कलर दिया गया है, और उस पे बच्चे खड़े होके उनको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवाने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें कितनी चीजें एक ही एक्सपीरियंस में आ सकती है, ये आपको समझ में आएगा। उसमें लैंग्वेज आ सकती है, उसमें मैथमेटिक्स आ सकता है, उसमें कलर का ज्ञान आ सकता है, उसमें शेप का ज्ञान आ सकता है, उसमें कुछ वो ये शेप पे जाके अगर आप समय पे उस पे नहीं गए तो आपको एक गाना बोलना है तो गाना कर सकते हैं, फिर ड्रामा कर सकते हैं। तो एक ही चीज, एक ही एक्सपीरियंस में बच्चों को कितने सब्जेक्ट का ज्ञान हम आगे ले जा सकते हैं, और वो भी क्रिएटिवली। और बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा कि इतने सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, और इतने प्ले वे मेथड से, जिसको हम लोग बोलते हैं, खेलते खेलते बच्चे सीख जाते हैं। ये इंटीग्रेशन इस टाइप का ईसीसी के लेके स्कूल एजुकेशन के हर स्टेज में एक्सपेक्टेड है। इसके लिए इनोवेटिव पेडागोजीज हमें करने हैं। एज ए टीचर हम लोगों को ये सोचना है कि हम लोग आज तक जो करते आए हैं उसमें हमारा टॉकिंग टाइम बहुत ज्यादा रहता है, और एक हमारा एजम्पशन रहता है एज अ टीचर कि बच्चों से ज्यादा मुझे समझ में आता है, और मैंने जो बोला है वो बच्चों ने करना चाहिए, और मैं जब पढ़ाऊंगा तो ही बच्चा सीखेगा। ये सब हमारे गलत फहमियां हमें पहले दूर करनी होगी। हमें ये समझना होगा कि हर एक बच्चे में पोटेंशियल रहता है, वो खुद से खुद सीखता है। और स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज ऑलरेडी विद इन। तो हमारे अंदर ही सब खूबियां है, हमारे अंदर ही स्किल्स है, हमारे अंदर ही कैपेसिटीज है। तो वो सिर्फ एनहांस करने के लिए हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस की जरूरत है, और वो जो एक्सपीरियंसेस देने हैं, अनुभव देने हैं, वो पावरफुल होने के लिए टीचर को जो रोल निभाना है वो फैसिलिटेटर का है। इसलिए अगर बेस्ट टीचर किसको कहा जाता है, बेस्ट फैसिलिटेटर किसको कहा जाता है, कि 35 मिनट्स का अगर एक आपका सेशन है तो उसमें आप 10 मिनट तक खुद का आपका टॉकिंग टाइम है, और बाकी सब टाइम बच्चे ही खुद में इंटरैक्ट कर रहे हैं।
तो जहाँ पे डिफिकल्टी आती है वहां पे चैनलाइज करना, यही आपका रोल है। और बच्चे कोलैबोरेटिवली कैसे सीखे, एक दूसरे से साथ इंटरेक्ट करके कैसे सीखे, इस पे ज्यादा फोकस दिया गया है। इसीलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंटीग्रेटेड पेडागोजी, कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब चीजों के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। और इस तरीके के मौके बच्चों को स्कूल में कैसे दिए जाए। स्कूल शुड बी सेंटर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। तो बच्चों को अलग अलग चीजें सीखने के लिए जितने भी नए नए एक्सपीरियंसेस हम लोग दे सकते हैं, वो एक्सपीरियंसेस देने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे सोचना, ये एज ए टीचर हमारा रोल होगा। तो इसलिए ये पेडागोजी हमें ट्रांसफॉर्म करनी है और उसके अकॉर्डिंगली बच्चों का हायर लेवल थिंकिंग का प्रोसेस डेवलप करते करते हमें आगे जाना है। आर्ट, स्पोर्ट्स, स्टोरी टेलिंग, इंटीग्रेटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये करते करते हमें बच्चों को आगे लेके जाना है। पीयर लर्निंग पे हमें फोकस करना है। बच्चे एक दूसरे के साथ काफी अच्छे सीख लेते हैं। तो कुछ भी अगर बच्चों को दिक्कत आती है, सपोज अभी छोटे बच्चे हैं और उनको आप लोगों ने कुछ ऐसे खिलौने खेलने के लिए दिए गए हैं और खेलना उनका खेलना होने के बाद आप बोल रहे हैं कि वो टोकरी जो रखी गई है उसमें सब खिलौने आप इकट्ठा करके रख लो। तो वो बच्चे एक ही कटोरी में सब रखने की कोशिश करता है और उसमें वो नहीं जमा कर नहीं पाता है क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी है। तो आप उसको बोलते हैं इसमें नहीं उसमें रखो, ये करो। उससे अगर इसके अलावा हम लोग उनको बोलते हैं वो क्यों नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या करोगे, तो उनको ये चैलेंजिंग लगता है। बच्चों को चैलेंज बहुत अच्छा लगता है, जिसको हम आह्वान बोलते हैं। तो ये चैलेंजेस क्रिएट करना, ये लर्निंग के लिए, जिज्ञासा के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। तो ये अलग अलग चैलेंजेस हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, वो चैलेंजेस फेस करने के लिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग बच्चों को कोलैबोरेट कैसे करेंगे और वो उनका लर्निंग एनहांस होने के लिए वो एक दूसरे में कैसे इंटरेक्ट हो ताकि उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़े। ये यही स्किल्स है जो 21st सेंचुरी के स्किल्स है। और ये करते करते हम लोगों को ये देखना है कि टेक्स्ट बुक में भी लोकल फ्लेवर आना चाहिए और टेक्स्ट बुक में इंडिजिनस नॉलेज आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जो बोल रहे हैं, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बोल रही है कि 5th तक बच्चों का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ये मातृभाषा होनी चाहिए और हो सके तो 8th तक भी अच्छी है, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। इसका मीनिंग ही ये है कि बच्चे अपनी भाषा में अच्छा ग्रास्प लैंग्वेजेस खुद से सीख पाते हैं, तो सेल्फ लर्नर बन पाते हैं। तो टेक्स्ट बुक में भी लोकल कंटेंट और फ्लेवर पे फोकस होगा, उसके अकॉर्डिंगली पेडागोजी में बदलाव होगा। फिर एग्जामिनेशंस जो है वो भी 1st to 8th के बदलने वाले हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग ये भी होगा। क्योंकि बच्चे सीखते, असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं ऐसे हम लोगों को पता भी नहीं चलता, बच्चों को भी नहीं। और इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आप क्रिएट करेंगे तो उसमें असेसमेंट भी होगा और बच्चे खेलते खेलते सीख भी जाएंगे। ऐसे अलग अलग तरीके इसके लिए बनाए गए हैं, बनाने पड़ेंगे हमें कि असेसमेंट का भी क्राइटेरिया बदलना होगा। अनिता जी ऑनरेबल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनका भी एक वेबिनार सुना हुआ था, तो उन्होंने ये फोकस किया था कि हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करिकुलम रिफॉर्म पे देते हैं, पेडागोजी पे देते हैं, लेकिन जब तक हम हमारा असेसमेंट इवैल्यूएशन का पैटर्न नहीं बदल देंगे तो ये सब में बदलाव लाना बहुत मुश्किल होगा। तो इतना इम्पोर्टेंस ये इवैल्यूएशन सिस्टम बदलने के लिए दिया गया है और 360 डिग्री में हर एक बच्चे का इवैल्यूएशन होना चाहिए। बच्चा खुद का खुद इवैल्यूएशन करे, बच्चे अपने साथियों से उनका इवैल्यूएशन हो, जिसको पीयर असेसमेंट करेंगे। फिर
टीचर भी करे, यानी 3 लेवल पे ये इनका इवेल्युएशन होगा। उसके लिए नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी, जिसको हम लोग ये पॉलिसी में परख कहा गया है। और इसमें ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर ऑफ असेसमेंट, ये कल्चर जो है असेसमेंट करने का, वो ही उसमें ही पूरी तरीके से बदलाव लाने का कहा गया है। उसके लिए नेशनल लेवल पे एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी और वो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट बनेगी। अभी आपको पता है कि अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम बच्चों को देने होते हैं और अलग अलग फीस पेरेंट्स को देनी होती है, अलग अलग क्लासेस उनको लगाने होते हैं। तो ये सब पे भी बहुत सोच विचार इसमें आपको दिखाई देगा। और ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है वो उसके बच्चों का कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सोशियो इमोशनल और साइकोमोटर डोमेन, हम लोग बोलते हैं कि बच्चों का सभी तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वो नापते नहीं है। उसके लिए इसमें 360 डिग्री का प्रोग्रेस कार्ड, और ये बचपन से लेके यानी ईसीसी के लेके पूरा स्कूल एजुकेशन के लिए अगर हम लोग कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्रेस कार्ड बनाएंगे तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करना होगा। और ये इवैल्यूएशन के लिए अलग अलग रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए प्रोग्रेस इन प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विजेस, रोल प्लेस, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज, ये भी इस रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड किए जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट होगा, पीयर असेसमेंट होगा, टीचर असेसमेंट होगा। और ये जो है ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और हर एक डोमेन में उनकी सही तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, ये हम लोग देख पाएंगे। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये अलग बात है और लैंग्वेज सीखना ये अलग बात है। तो ये समझ लेने की बहुत जरूरत दिखती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रभाव अभी दिख रहा है। और पेरेंट्स का भी एक गलत फहमी है कि मेरा बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो ही वो अफसर बन पाता है। एक्चुअल में जितने भी रिसर्चेस हुए हैं वो रिसर्चेस यही दिखाते हैं कि जिनका मदर टंग में एजुकेशन हुआ है तो उनके कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, वो अलग अलग सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं और अलग अलग लैंग्वेज भी सीख पाते हैं। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए पॉलिसी मना नहीं करती है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वही कंटिन्यू किया है, लेकिन उसमें से 2 इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने अगर देखा तो हमारे लास्ट 50 इयर्स में 220 इंडियन लैंग्वेजेस अभी नहीं रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को ने दिया हुआ रिपोर्ट है कि 197 जो है वो एंडेंजर्ड है और 220 लैंग्वेजेस हमारे अभी नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका स्क्रिप्टिंग नहीं हुआ, उसका यूज नहीं हुआ। और वो जो लोग ये यूज करते थे वो अभी नहीं रहे। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस इंडिया में हैं जो जिसके साथ वो लैंग्वेज सिर्फ नहीं जा रही है, तो उसके साथ उसकी संस्कृति भी जा रही है। वो अगर हमें बचाना है तो ये पॉलिसी ट्रांसलेशन की भी, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए भी इंडियन इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करती है। तो ये नॉलेज हम लोगों को बचाना है, अगली पीढ़ी तक वो देना है। और उसके लिए सभी प्रावधान इसमें किए गए हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया का रिच हेरिटेज जो है, वो जो कल्चर है उसमें बसा हुआ हर एक लैंग्वेज में। और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है जैसे संस्कृत, ये साइंटिफिक लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जिसको सभी भाषा की जननी बोलते हैं, ये हर एक लेवल पे सीखने के मौके बच्चों को मिलने चाहिए, ये भी इस पे कहा गया है। स्कूल की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए भी इसमें कई तरीके दिए गए हैं पॉलिसी में। स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर्स बनाने के बाद महाराष्ट्र ये जो है ये हम लोगों के पास ऑलरेडी ये स्कूल क्लस्टर्स है, क्योंकि 1966 का जो कोठारी कमीशन था उन्होंने ही ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट लेके आए थे। 68 की पहली पॉलिसी में ये था। जबी से महाराष्ट्र में इसकी एक लीगेसी रही है। बीच बीच में थोड़ा इस पे 94 के बाद थोड़ा
उतना ग्रिप नहीं रहा था, लेकिन अभी फिर से ये एलिमेंट्री लेवल पे तो काफी अच्छा है, सिर्फ सेकेंडरी लेवल पे वो क्लस्टर्स नहीं थे, लेकिन इस पॉलिसी की वजह से अभी उसको वो सेकेंडरी स्कूल्स में भी इसको ऐड करना होगा। बेसिक थीम क्या है स्कूल कॉम्प्लेक्स का, कि जो एक अच्छा स्कूल है उसके साथ ईसीसी से लेके एक अच्छा सेकेंडरी स्कूल के साथ प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, ईसीसी सेंटर, ये सब जुड़ने चाहिए। उसमें टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भी हो, आईटीआई हो, ताकि एक ही क्लस्टर में बच्चों को सीखने के अलग अलग मौके मिले। उनको वोकेशनल एजुकेशन इतना एक्सपोजर हमें स्टैंडर्ड 6 से देना है, स्टैंडर्ड 9 से 12 तक उनको अलग अलग 40 सब्जेक्ट्स उनको सीखने के मौके देने हैं। तो इतने टीचर्स कहाँ से आएंगे, इतने इंस्ट्रक्टर्स कहाँ से आएंगे, इसके लिए लगने वाले वर्कशॉप, इसके लिए लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए लगने वाले अदर पैरामीटर्स, ये सब हम लोग शेयरिंग से कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारा कल्चर है कि विन विन सिचुएशन, हम सहयोग सहभागिता से, सहयोग से ही खुद का विकास और सबका विकास कर पाते हैं। इसके लिए ये स्कूल कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस फॉर टू अचीव क्वालिटी एजुकेशन एंड टू अचीव क्वालिटी and to reach quality education to each and every child. इसके लिए ये स्कूल कॉम्प्लेक्सेस लेके आए हैं। और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, और जैसे नैक रहता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, वैसे स्क्वैफ रहेगा, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। और ये प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो, हर एक के लिए ये स्टैंडर्ड एक ही रहेंगे। तो इसमें कहने की बात ये है कि क्वालिटी ये हर एक लेवल पे इंश्योर की गई है, सुनिश्चित की गई है। बच्चों की सीखने की क्वालिटी, तो बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकर बने, सेल्फ लर्नर बने, वो क्रिएटिव थिंक कर पाए, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग कर पाए, मशीन लर्निंग कर पाए, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी नॉलेज हो, स्टैंडर्ड 6 से उसको कोडिंग भी सिखाई जाए, उसको लॉजिकल थिंकिंग आना चाहिए। ये बच्चा कैसा विकसित होगा, उसके सीखने की क्वालिटी पे काम किया गया। वैसे स्कूल के क्वालिटी के लिए ये SQAAF जो है एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क ये किया गया है। पेडागोजी के लिए भी कैसे किया गया है, करिकुलम के लिए कैसे किया गया है, टीचर ट्रेनिंग के लिए कैसे किया गया है, टीचर एजुकेशन के लिए, ये भी आपको इसमें समझ में आएगा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होगा। अभी डीएलएड जो है धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो फेज है वो 10 ईयर्स का दिया गया है इस पॉलिसी में, और 10 साल में ये पूरा टीचर एजुकेशन जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस में आएगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये आने वाला है। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ये ईसीसी से लेके सेकेंडरी स्टेज जो 5+3+3+4 का पैटर्न हम लोग बोल रहे हैं, इस पे ट्रांसफर होगा। तो टीचर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का भी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए इस पॉलिसी में प्रावधान रखा गया है। और 2012 का जो जस्टिस वर्मा कमीशन का रिपोर्ट है कि सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट शुड बी शट डाउन, तो ये पॉलिसी में फिर से एक बार कहा गया है कि आज भी देश लेवल पे, पूरे भारत नेशनल लेवल पे हम लोगों को ये दिखाई मिलता है कि 10,000 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ये ऐसे है कि जो सीरियसली ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन और इन सर्विस टीचर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। तो सब स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन शुड बी इंस्टीट्यूट शुड बी शट डाउन, ऐसा कहा गया है। और ये होने के बाद डिमांड और सप्लाई जितना है उसके अकॉर्डिंगली हर एक स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में एक्सरसाइज किए जाए, और उसके अकॉर्डिंगली जितने कॉलेजेस लगने वाले हैं उतने ही कॉलेजेस बीएड कॉलेजेस रहेंगे। और उसमें ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ये 4 स्टेजेस के लिए दिया जाएगा। और टीचर रिक्रूटमेंट के लिए भी अच्छे टीचर इसमें रिक्रूट हो, इसके लिए भी ये इसमें प्रावधान किया गया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आज भी ली जाती है, उसका करिकुलम रीलुक किया जाएगा,
फिर अलग अलग जो स्टेज है, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, हर एक के लिए कोई भी पब्लिक स्कूल में रिक्रूट होना है या प्राइवेट स्कूल में, तो उनके लिए रिक्रूटमेंट के लिए टीईटी पास होना है, जरूरी क्राइटेरिया लगेगा हर एक टीचर के लिए। तो ये 2 बार उनको टीचर का ये जो है अच्छा टीचर बने, इसके लिए इंश्योर किया गया है। एट द टाइम ऑफ एंट्री टू प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, उसके लिए एंट्रेंस होगा, और बाद में जब वो टीचर बनेगा उसके लिए फिर से टीईटी होगा। तो 2 बार उसको नापा जाएगा कि वो अच्छा टीचर बनने के लायक है कि नहीं। और फिर बाद में उसके लिए ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम होगी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए भी, बाद में टीचर ट्रांसफर के लिए भी, फिर टीचर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उनको प्रमोशन दिया जाएगा। फिर नेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे टीचर के लिए। तो टीचर की क्वालिटी एश्योर करने के लिए उनको हर साल, जो इन सर्विस टीचर आए हुए हैं उनको भी हर साल 50 आवर्स की सीपीडी यानी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एज वेल एज टू हेड मास्टर, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, उनको भी 50 आवर्स एवरी ईयर है। उसके लिए ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, स्वयं दीक्षा पोर्टल का भी इफेक्टिव यूज करने के लिए बात कही गई है। तो ये अलग अलग तरीके से लीडरशिप भी कैसे एनहांस हो और खुद सीपीडी के मौके कैसे मिले, और इनकी जो मानसिकता है हर एक टीचर की माइंडसेट जो तय करना है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, ये कोई टीचर अच्छा है या बुरा है ये इसके लिए नहीं है, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होने के लिए है कि टीचर को भी पता चले कि मैं किस लेवल पे हूँ, मुझे किस एरिया में खुद को इम्प्रूव करना है, ये समझने के लिए ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स बनेंगे बाय 2022। और इसके लिए एनसीईआरटी भी काम करेगा, एनसीटी भी अपग्रेड होने वाला है पीएसएसबी में, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बोल के, और ये दोनों मिलके इस पे काम करने का ये प्रावधान इस पॉलिसी में रखा गया है। टीचर रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के बारे में मैंने बात कही है। अभी परख जो है ये परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये 21st सेंचुरी स्किल्स जो बच्चों में आने चाहिए, हम लोग बोल रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्पिटेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये सब आने के लिए उसके अकॉर्डिंगली उनका इवेल्युएशन भी होना चाहिए। जैसे पेडागोजी में बदलाव होंगे, करिकुलम में होंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होंगे, वैसे ही इवेल्युएशन में होंगे। और नेशनल लेवल पे ये परख नाम की इंस्टीट्यूट उसके लिए एस्टेब्लिश होगी, और वो जो स्टेट अचीवमेंट सर्वे है या नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसके लिए गाइड करेगी, और मॉनिटरिंग अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन द कंट्री, हर एक सब्जेक्ट में क्या लर्निंग आउटकम्स में बदलाव आ रहे हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं तो उनको क्या बदलाव लेके आने हैं। जो वो टीचर एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, क्योंकि ये जो स्कूल एजुकेशन का होगा उसके अलाइन उसको बनाना है, और फोर्थ वाला जो अलग जो है वो एडल्ट एजुकेशन के लिए। तो इतने अलग अलग करिकुलम फ्रेमवर्क्स बनेंगे, उसके अकॉर्डिंगली स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, हर एक स्टेट में रिवर्स होगा, और आगे जाके कम है। तो रिसर्चेस यही बताते हैं कि ईसीसी हम लोग जितने जल्दी, क्वालिटी ईसीसी जितने जल्दी हम लोग उसका यूनिवर्सलाइजेशन कर पाएंगे, तो और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हर एक बच्चे में हम लोग जितने जल्दी अचीव कर पाएंगे स्टैंडर्ड 3 तक, उतने ही आगे की हर एक शिक्षा में हम लोगों को अच्छे उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्योंकि हमारा जीआर हायर एजुकेशन का भी अभी 26 के अराउंड है, जो हम लोग 50% 2030 तक लेके आना चाह रहे हैं। तो ये ऐसे अलग अलग टाइमलाइंस दी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और इसमें हमें ये देखना है कि नॉलेज ऑफ इंडिया ये अलग अलग लेवल पे कैसे लेके आना है, और उसके लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इंस्पिरेशनल ह्यूमैनिटीज ऑफ इंडिया इन साइंस एंड बियॉन्ड। अभी हम लोग अगर देखते हैं तो जगदीश चंद्र बोस हो या प्रफुल्ल चंद्र रे हो, इन लोगों को कोई रिसर्च के लिए किसी ने फंडिंग नहीं किया था, उन्होंने खुद ने ही एज ए साइंटिस्ट वो रिसर्च किया था। और कितनी सारी चीजें ऐसी है जो हमारे
विज्ञान की चीजें ऐसी है जिसका संशोधन या रिसर्च भारत में हुआ है। तो ऐसे कौन लोग हैं, इनका सब नॉलेज इकट्ठा करना, वो जिस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग एक्सरसाइज हम लोग दे सकते हैं, उसका वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करके उनको ये इंडिजिनस नॉलेज क्या है ये उन तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट्स विल बी गिवन अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजंस इन यंग एज। तो वैल्यू बेस्ड डिसीजन कैसे ले, हम लोग बोलते हैं कि ऑनेस्ट होना चाहिए, और बच्चों को सिखाते हैं कि ऑनेस्ट होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फोन कॉल आने के बाद बच्चों को ही मैसेज देते हैं कि बोलो बोलो पापा नहीं है घर पे, तो इससे नहीं होगा। तो ये जो है, ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को लगती है, लेकिन इससे ही बच्चे सीखते हैं। तो ये बच्चे एथिकल डिसीजंस हर एक सिचुएशन में ले, इसके लिए जब भी ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती है वैल्यूज की, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, ये ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको क्रिएट करने होंगे, और उसमें वाइज डिसीजन क्या होगा। और बच्चे जब स्कूल में या स्कूल आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए, या बच्चों के साथ आपस में इंटरेक्ट करते हुए कोई पिकनिक पे जा रहे हैं, वहां पे ऐसे अगर सिचुएशंस आते हैं तो उनको एप्रिसिएशन जभी का जभी देना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे में वो डिसिमिनेट हो। ट्रेडिशनल इंडियन and all basic human and constitutional values will be developed in all students। और उसके लिए जो जीवन का रोज का एक हैबिट में बदलाव लेके आने के लिए क्या क्या करना है वो सब हमें करना चाहिए। और उसके उसके अलावा उन बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, इसके लिए बुक्स में जो लिखा गया है वही 100% सही है, ये मानने की या टीचर ने जो बताया वही सही है, ये हमारे पास के अकॉर्डिंगली उसका स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा नॉलेज ऐसा रहता है कि हमारी दादी जी का बटुआ बोलते हैं, नानी जी का बटुआ, उसमें अलग अलग रेमेडीज रहते थे। और आजकल ऐसा हुआ है कि कुछ भी हुआ तो हम लोग जल्दी से टैबलेट्स ले रहे हैं। और ये कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में ये हम लोगों को ये आयुर्वेद क्या है इसका पता चला है, इंडिजिनस नॉलेज आयुर्वेद में क्या है इंडिया का, फिर उसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं वेलबींग के लिए, हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, ये अलग अलग चीजें सामने आ रही है। तो इस पैंडेमिक में भी हम लोगों को काफी पता चला है कि हमारे देश में ही इसके रेमेडीज, हमारा जो काढ़ा बोलते हैं उसको, ये कितने लोगों को काम आया है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है, वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस में करिकुलम ट्रांजैक्शन के समय और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। तो स्पेसिफिक कोर्सेस ऑन ट्राइबल आने के बाद वो छूटता गया है, उसको हमें फिर से लेके आने की जरूरत है, ताकि हम लोग नेचर के जो जितने भी एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स हमारे सामने आज खड़े हुए हैं वो हम कम करते जाए। करिकुलम टू इंक्लूड नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट, जैसे बोलते हैं कि ये एंशिएंट इंडिया टू मॉडर्न इंडिया एज वेल एज फ्यूचर एस्पिरेशंस। हम लोग 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल सिटीजन की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। तो इसको ये करते हुए किसी को ये क्वेश्चन भी आता होगा मन में कि इंडिजिनस नॉलेज और ये 21st सेंचुरी का नॉलेज, इसका ब्रिज हम लोग कैसे करें, ये गैप कैसे करें। तो एंशिएंट नॉलेज में भी हम आप लोग अगर देखेंगे, अलग अलग केव्स देखेंगे, हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगे, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि वहाँ उस टाइप का आर्किटेक्चर कैसा था और कितने एडवांस टेक्निक जब भी यूज किए गए थे, कितने साइंटिफिक रिसर्चेस एडवांस थे, कि हमारा जो वैदिक शास्त्र है वो कितना एडवांस था। तो अलग अलग चीजों में आप अगर जाएंगे तो उसमें आपको यही दिखाई देगा कि 64 कलास जो बोलते हैं, जो 64 आर्ट्स है और 14 विद्या, सिर्फ में पहले 14 विद्या कौन से है
ये थोड़ा शॉर्ट में लेती हूँ क्योंकि अभी समय थोड़ा बढ़ता जा रहा है। एक 5-10 मिनट में मैं ये वाइंड अप करूंगी। तो 14 विद्याज या 14 टेक्निक्स कौन से हैं? तो उसमें ऋग्वेदा है, सामवेदा है, यजुर्वेदा है, अथर्ववेदा है और उसके 4 उपवेदास है जिसमें बहुत सारा नॉलेज है, अर्थशास्त्र है, धनुर्विद्या है, गंधर्व विद्या है, आयुर्वेदा है। फिर वेदांगास में क्या है? शिक्षा कैसे करना है, आर्ट ऑफ रिचुअल्स है। तो रिचुअल्स आज के डेट में हम लोगों को आउटडेटेड लग सकते हैं, तो ये जो आउटडेटेड है ये हमें नहीं लेना है, लेकिन वो रिचुअल्स में अगर कोई साइंटिफिक चीज हमें दिखाई देती है तो वो हमें आगे लेके जानी चाहिए। कॉलेज इसमें है ये हो गए 14 विद्या और जो आर्ट उसमें भी आर्ट यानी सिर्फ म्यूजिक के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। आर्ट ऑफ मेकिंग कवरिंग ऑफ फ्लावर्स फॉर बेड एंड आर्ट ऑफ मेकिंग द ग्राउंड वर्क ऑफ ज्वेल्स। अभी ज्वेलरी मेकिंग के अलग अलग कोर्सेस हो रहे हैं, लेकिन ये 64 कलास जो हम लोग बोलते हैं आर्ट फॉर्म्स उसमें है। आर्ट ऑफ फ्लैशिंग विथ वाटर, आर्ट ऑफ प्रैक्टिकली अप्लाइंग एंड एडमिक्सचर ऑफ कलर, आर्ट ऑफ डिजाइनिंग अ प्रिपरेशन ऑफ wreaths, then art of practically setting cornet on the head। तो इतनी चीजों के लिए इतने साइंटिफिक तरीके से सोच विचार करके ये अलग अलग आर्ट फॉर्म्स डेवलप किए गए हैं जो आज भी यूजफुल है ऐसे हमें लगता है। तो ये अलग अलग आर्ट फॉर्म्स इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम लोग अगर हर एक लेवल पे सिखा पाते हैं बच्चों को, तो वो बच्चे एंजॉय भी कर पाएंगे और उनको अलग अलग वोकेशंस भी खुद वो सीख पाएंगे उस तरीके से। और इससे क्या होगा कि वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे, ना कि जॉब सीकर्स, कि कहीं जाके दूसरों को जॉब मांगने वाले नहीं होंगे। तो वो खुद लीडरशिप करेंगे हर एक कंट्री में जाके, क्योंकि ग्लोबली हम लोग अगर देखते हैं तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ ऐसे कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में ज्यादा है। और इसीलिए इस पॉलिसी जो बोलती है कि आत्मनिर्भर भारत बने, राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोगों को एक इंडिया सुपर पावर बनने के लिए ये पॉलिसी फ्यूचरिस्टिक व्यू रखती है। इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान बोलते हैं वो विजडम तक कैसे लेके जाए, और ट्रूथ, ये यही हमारा कल्चर है, उसका रियलाइजेशन हम लोगों को बच्चों को कर देना चाहिए। क्योंकि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये जो हम लोग अभी बोल रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स है वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी होने चाहिए, ना कि स्पेशलाइज ओनली फॉर दिस। तो ये जो है वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन का हमारा हेरिटेज रहा है। उस जमाने में ये ऐसे विश्वविद्यालय थे जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच था, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे सिखाए जाते थे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसमें होते थे और अलग अलग देशों से हमारे पास लोग आते थे। उसमें से ही ग्रेट स्कॉलर्स जैसे ये यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, भास्कराचार्य है, ये अलग अलग हम लोगों को स्कॉलर्स है, जिसमें गार्गी मैत्रेयी जैसे महिला स्कॉलर्स भी है। ये हमारा हेरिटेज रहा है। तो जेंडर इक्वालिटी भी इसमें दिखाई देती है। सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इन डाइवर्स फील्ड्स, मैथमेटिक्स का हमारा जो ज्ञान है वो काफी जो एंशिएंट है, लेकिन आज भी बहुत देशों, जो विकसित राष्ट्र जिसको बोलते हैं, उनके भी आगे है, ये हमें समझ में आएगा। वो उसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी का है, मेटलर्जी का है, मेडिकल साइंस का है, सर्जरी का है, सिविल इंजीनियरिंग का है, आर्किटेक्चर का है, शिप बिल्डिंग, नेविगेशन, योगा, फाइन आर्ट्स, सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें हम लोग जिसको अभी विकसित राष्ट्र बोलते हैं उनके भी आगे है। तो इसीलिए ये इंडिजिनस नॉलेज, इंडियन हेरिटेज और इंडियन इथोस, इस पे हम लोगों को ये काम करना है। और इंडियन फिलोसॉफी और कल्चर के बारे में हर एक बच्चे के मन में
एक सम्मान जागृत करना अलग अलग एक्सपीरियंसेस से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन बोलते हैं कि अगर हम लोगों को इंडिया ट्रांसफॉर्म करना है एज अ ग्लोबल सुपर पावर, देन ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, contributing to an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all. Thank you all. थैंक यू मैडम, सच अ वंडरफुल सेशन। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें NEP 2020 बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है, लाइफ लॉन्ग लर्नर कैसे बनाना है, बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है। मैं टीचर से HM से रिक्वेस्ट करती हूँ, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन प्लीज आस्क टू मैम। हेलो। हेलो। मैं तन्वी सोलंकी हूँ, डाइट में ही अभी काम कर रही हूँ। नमस्ते मैम। मैम आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, यानी इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन से ही आपने स्टार्ट किया कि जैसे हमारा इंडिया है कि इट्स अ रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज and that the thought has been a guiding light for this policy मैम। यानी जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज है, जो एथिक्स है मैम, तो हम आजकल के जो बच्चे हैं, जो ये 21st सेंचुरी के बच्चे हैं मैम, तो उनमें कैसे इनकलकेट करिए वैल्यूज मैम, उनको कैसे यानी हम बताएं कि जो हमारे इंडिया है, जो हमारा नॉलेज है वो वास्ट है, वो यानी रीच है। जैसे आपने बोला कि वेस्टर्न जो कंट्री है वो यानी जो सर्वेज यानी वो सब उनको पता है, लेकिन हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनको यानी इतना वैल्यूज नहीं है, तो हम कैसे वो वैल्यू इनकलकेट करें उनमें? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये देखिए, अभी बच्चा कहाँ कहाँ सीखता है और कैसे कैसे सीखता है, इस पे हम लोग अगर सोच विचार करते हैं तो पहले वो फैमिली में सीखता है, माँ के साथ सीखता है, फिर स्कूल में आने के बाद, फिर समाज में आने के बाद, है ना। तो अनुभव से सीखता है, खुद पढ़ के सीखता है, शिक्षकों से सीखता है। तो शुरुआत में 0 to 3 के एज ग्रुप के लिए भी नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनने वाला है। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या हमारा कल्चर या हेरिटेज, हम लोग जब बोलते हैं तो वैल्यू सिस्टम क्या है हमारे, तो बड़ों का आदर करना ये हमारी एक वैल्यू है, ठीक है। तो बड़ों का आदर करते समय बहुत बार हम लोगों का ये समझ रहती है कि मैं उससे बड़ी हूँ, मैं माँ हूँ उसकी, हमारा बच्चा है तो मैं जो बोलती हूँ वो उसने करना चाहिए। लेकिन उसी समय व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है, तो वो बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसका भी आदर सम्मान हमें करना है। वो नहीं चाहता है कि अभी पढ़ना है या लिखना है, तो वो चाहता है कि अभी मुझे सोना है, तो उसके भावना का आदर करना ये भी बहुत जरूरी है। तो ये ऐसे सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये हमारे वर्तन से, बिहेवियर से, हम उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ बोलते समय जो हम लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी है और उसको कैसे समझ ले रहे हैं। क्योंकि आदर सम्मान करना, बच्चों से सीखना, ये भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग जब बोलते हैं कि सपोज वो टीचर के पास आया है, टीचर के पास आने के बाद अगर आप कोलैबोरेटिव लर्निंग के एक्सपीरियंसेस वहां पे क्रिएट करते हैं क्लासरूम में, तो एक एक्टिविटी अपने 5 ग्रुप क्लासरूम में बना दिए हैं और 5 ग्रुप बना दिए और हर एक ग्रुप को कहा गया है कि ये प्रॉब्लम आपको दी गई है और आप इस पे अभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सीखो। सपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स है, तो टाइप्स ऑफ लीव्स हर एक ग्रुप में आपने दिए हुए हैं, ठीक है, 5 ग्रुप है और उनको कहा गया है कि इसका ऑब्जर्वेशन करो और इसमें क्या क्या अलग अलग आपको दिखता है, उसके अकॉर्डिंगली आप पॉइंट्स निकालो। तो 5 ग्रुप में आपको ये दिखाई देगा कि टास्क तो एक ही दिया गया है, लेकिन बच्चे अलग अलग सोच रहे हैं उसमें।
है ना। तो वैसे ही रहता है कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखता है। तो वो हमें देखना है, उनसे भी हम लोग कुछ सीखते हैं कि 5 ग्रुप में अलग अलग दिया है, आपने जिस तरीके से उनको दिया था, एक ग्रुप ने आपके जैसा सोच था आपके एज अ टीचर, वैसे ही उन्होंने करके दिखाया कि ये अलग अलग टाइप्स ऑफ लीफ है, इसको ये कहा जाएगा, ये कहा जाएगा, और ये 3 हम लोगों ने इन कैटेगरी में किए। लेकिन दूसरे ग्रुप में आपको वो अलग तरीके से वो लोगों ने उस पर सोच विचार किया है, ऐसे आपको समझ में आए। तो हर एक का हमें रिस्पेक्ट करना है। तो वो कैसे करना है, तो ये हमें सोचने की बात। तो ये छोटी छोटी चीजों से कि टीचर मेरा सम्मान करती है, मैंने जो कोई भी ओपिनियन दिया है, शी इज रिस्पेक्टिंग, तो इससे अलग एक रिलेशन बनता है। तो ये छोटी छोटी चीजों से होगा। तो अगर हम बाल शिक्षा से शुरुआत करते हैं, तो ये हो गया आदर सम्मान। हम बोलते हैं अभी 15 अगस्त आया है और आपको जो राष्ट्रगीत है वो अच्छे से आना चाहिए, या फिर आपको जो हमारा फ्लैग है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इस तरीके से एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये बच्चों को समझ में आना चाहिए, उनके दिमाग में ये फिट होना चाहिए, उसके जैसे एक्सपीरियंसेस हमें क्रिएट करने हैं कि रिस्पेक्ट करना है तो क्या करना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो इमोशनली वो बच्चा अभी क्या फील कर रहा है ये भी सोचना जरूरी है। इंटेलेक्चुअली वो क्या सोच रहा है वो भी समझ लेना जरूरी है। और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ये अलग अलग नॉलेज है वो कहाँ फिट होता है, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम लोग देने की बात कर रहे हैं। तो आर्ट फॉर्म्स में कहाँ देंगे, स्पोर्ट्स में कैसे देंगे, योगा के इसमें कैसे देंगे, ये सब सोच के हम लोगों को आगे जाना है। अभी बच्चा ट्राइबल डायलेक्ट में सीखता है घर में, उसमें ट्राइबल डायलेक्ट है और वो आपके स्कूल में आया है। और जैसे आज मुझे जापानीज लैंग्वेज नहीं आती है और आप कुछ जापानीज लैंग्वेज में कह रहे हैं, तो मुझे आपने कहा कि मैडम आप बोलना शुरू कीजिए, मैं देखते ही रह जाऊंगी क्योंकि जापानीज में आपने कहा है, मुझे पता ही नहीं है। वैसे ही वो ट्राइबल बच्चे के लिए है, जब वो स्कूल में आता है उसको आपकी लैंग्वेज ही पता नहीं है। तो टीचर का ये बनता है कि उसकी लैंग्वेज क्या है, वो कौन से शब्द उसको पहले मुझे समझ लेने चाहिए, वो लैंग्वेज के कौन से सॉन्ग्स क्या है, फिर उनके स्टोरीज क्या है, उनके वर्ड्स क्या है, तो उससे हम लोग उससे जुड़ते जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं बच्चों को आगे लेके जाने के और उनके सीखने के मौके उनको देने के लिए, और उसमें हमारे इंडियन हेरिटेज को हम लोग समझने के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम रोहित शर्मा है। जो 10 डे बैकलेस है स्कूल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। 10 दिन जो है 6 to 12 जो है बच्चे वो जाएंगे वोकेशनल कोर्सेज के लिए, और बाकी के बच्चों के लिए क्विजेस अरेंज करेंगे स्कूल्स। तो इनको असेसमेंट कैसे किया जाएगा और इसके लिए कोई एक्शन प्लान या ब्लूप्रिंट है क्या? बात चली गई है, लेकिन मुझे क्वेश्चन आपका समझ में आया है कि 10 बैगलेस डेज जो है उसका डिटेलिंग नहीं किया गया है, और उसका वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मैं अनफोल्ड कर दूं, ठीक है? जी मैम। जी मैम। तो स्टैंडर्ड 6 से ही हम लोग वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, और वोकेशनल एजुकेशन में भी वन फिट्स ऑल, जैसे ये 4-5 ये 4 है, 7th के लिए ये है, और हेलो, हाँ क्या मेरी ऑडिबल? ओके। हाँ, मुझे क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, आवाज आ रही है तो कोई बात नहीं। तो 6th स्टैंडर्ड से अगर देना है तो पॉलिसी का कहना क्या है, मैं फिर से एक बार कहती हूँ आप लोगों को कि 66 पेजेस में बहुत सारी चीजों का डिटेलिंग जो है वो नहीं आया है।
और आ भी नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग अगर ड्राफ्ट पूरा पढ़ लेते हैं तो उसमें काफी सारी डिटेल्स दी गई थी। तो उससे ये पता चलता है कि स्टैंडर्ड 6 से, हेलो आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो, हाँ। तो स्टैंडर्ड 6 से ये वोकेशनल एजुकेशन जो है वो भी लोकल स्पेसिफिक होगा। यानी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में देखेंगे जो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया के वोकेशनल कोर्सेस अलग होंगे और प्लेटू एरिया जो है उसके कोर्सेस अलग होंगे। तो वोकेशनल एजुकेशन जो देना है वो लोकल स्पेसिफिक हो, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे उनको एक्चुअल जो उस एरिया में जो व्यवसाय करने वाले व्यावसायिक है उसके उनके साथ जुड़ के खुद एक्सपीरियंस करना, खुद काम करना और सीखना, ये एक्सपेक्टेड है ये 10 बैगलेस डेज में। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को फिशिंग सीखना है, फिशिंग कैसे करते हैं, उसका मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो उसको 10 दिन जाके वो वहीं पे जाके काम करना होगा, है ना। अगर कारपेंटरी सीखनी है किसी बच्चे को तो कारपेंटर्स को साथ जाके काम करना है। इस तरीके से अलग अलग वोकेशंस होंगे बच्चों को सीखने के लिए। और वो 10 बैगलेस डेज में वो कितने बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 50 बच्चे हैं आपके 6 स्टैंडर्ड के, तो वो बच्चों को डिवाइड करना होगा कि कितने अपॉर्चुनिटीज आप दे सकते हैं खुद जाके वो एक्सपीरियंस करने में। वो आइडेंटिफाई करने होंगे फील्ड लोकल स्पेसिफिक लोग कौन से हैं और उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। ऐसे किया जा सकता है। थैंक यू मैम। ओके, ओके, गुड आफ्टरनून मैम। हम्म, मैं पुष्पा पाटिल हूँ, मैं भी डाइट में अभी काम कर रही हूँ। मैम मुझे पूछना था कि आपने इंडियन इथोस को एनईपी में बहुत सारा बताया, जैसे ट्राइबल कल्चर है, लैंग्वेजेस है, लेकिन एक एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम जैसे नालंदा तक्षशिला हम बोलते हैं कि बहुत रिच हमारा एजुकेशन से रिलेटेड भी यूनिवर्सिटीज एजुकेशन रिलेटेड भी हमारा बहुत रिच एक संस्कृति रही है या ये है। तो उसको किस तरीके से पेडागोजी में या मेथोडोलॉजी में उसको किस तरीके से कहीं पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया है या कहीं पे वो आया है। तो जो हमारा इतना एजुकेशन सिस्टम जो पहले से चलता आ रहा है इंडिया में, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना था। हाँ, एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं ना पेडागोजी में कैसा था कि एक तो ये जो विश्वविद्यालय है वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट एक ही विद्यालय में विश्वविद्यालय में सीखने के मौके थे। जितने हम लोग बोलते हैं ये 64 आर्ट फॉर्म्स है, 14 विद्याज है और अलग अलग सब्जेक्ट जो सीखने हैं उनको एक ही विश्वविद्यालय में सीखने को मिलते थे। और जैसे अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स में कोई फैकल्टीज अच्छे रहते हैं तो वो फैकल्टी के नाम से जाना जाता था, वैसे ही उस टाइम पे भी अलग अलग जो एक्सपर्ट थे उसकी वजह से लोग वो विश्वविद्यालय चुनते थे। लेकिन पेडागोजी के बारे में अगर हम लोग एंशियंट पेडागोजी देखेंगे तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी का तो यहाँ पे बहुत सारी चर्चा हुई है। लेकिन पेडागोजी में जो था मॉनिटरिंग सिस्टम था हमारा गुरुकुल टाइम पे, समझ में आया? मॉनिटरिंग यानी क्लास मॉनिटर एक करना और उनमें तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि एक कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग की, पीयर लर्निंग की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें। अदर देन दैट जो रिसर्च बेस्ड सीखना है, प्रोजेक्ट दे के उस पे जो सीखना है, लेकिन इतना ज्यादा कुछ अनफोल्ड नहीं हुआ है पेडागोजी के बारे में, मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ। Yes, thank you, ma'am. I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to Dr. Neha Belsare, ma'am, for the guidance she has extended to all of us. I also extend my thanks to respected Secretary of Education, Pooja, ma'am, Director of Education, Nilesh Gurov, sir,
Assistant Director Paritosh Shukla sir, for their enormous cooperation. I thanks to all the teachers and headmasters for their presence. I also thanks to diet faculty. I thanks to Rohit sir for technical support. Once again, I thanks to everyone for making this session successful. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you.